first, I want you to have a look at this question. Seven people C, H, Q, S, T, V, X are standing in a single line facing a ticket window. मान लेते हैं ये टिकट विंडो, इस तरफ देख रहे हैं लोग. The first person is closest first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. X is immediately behind S. H is immediately ahead of C, who is third from the front. C is third from the front. HC. ऐसे लिख सकता हूँ. इधर देखो जो मैं कर रहा हूँ, इधर देखो. क्वेश्चन पढ़ते रहो. H is immediately ahead of C, who is third from the front. C के बाद लिखा है who is third from the front, मतलब C is third. और उससे आगे कौन है? H है. और S के जस्ट बाद कौन आता है? X. अब क्वेश्चन इतना देखने के बाद बच्चा घबरा जाता, कहां रखूं? नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन में कुछ और इंफॉर्मेशन, ये मेन स्टेटमेंट है. दिस इज मेन स्टेटमेंट. अब क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ T and V are the fourth and the last person. So T is fourth and V is the last person. Can you tell me where the SX will fit in? Fifth and sixth. Very good. Then which of the following must be true? H is first? No. H is second. Q is first? Absolutely right. X is fifth? No. S is sixth? No. Which one is correct? ठीक है? Clear? Is it tough? No, very easy. Let's do it now. Again you will be doing क्या? 1 2 3 4 5 6 7. हो गए सबके साइन हो गए? Now first is X is immediately behind S. H is immediately ahead of C, who is third from the front. ठीक है. S is standing immediately behind C. Sorry, S is standing immediately behind C.
एस एक्स आ गया, देन हाउ मेनी पर्सन्स आर बिहाइंड एक्स, एक्स से पीछे कितने लोग हैं? सबका यही आंसर था। There are 3% between H and S. 1, 2, 3. Can I do that? Which of the following must be true? V is first, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. T is fifth, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. S is fifth, no. X is last is correct. Is it fine, clear? ठीक है ना? In the previous question, what is the position of S from the front? What is the position of S from the front? Answer is V is the first, VT, TV कहीं पे भी आ सकता है. H is second, must not be true लिखा है, तो ये नहीं हो सकता. V is first, may be, may not be. Must कौन होता है? गलती है. ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है. Q is fifth, T is last, may be, may not be. So what is your answer? Q is fifth. Is it fine? I want you to try this. वॉल्यूम बढ़ा. हाँ, वही पूछ रहा था मैं, किसी ने जवाब नहीं दिया तो. ओके. और बड़ा कर देता हूँ. नाराज हो गया. ठीक है.
डन हो गया। हो गया होगा, सॉरी छोटा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे लिखना है। So question says five friends ABCD play five games and football, badminton, table tennis, carom, softball with each player playing only one game. Also each one of them like only one of Chinese, South Indian, Gujarati, Italian and Mughlai food. It is also given that football, table tennis and softball are the ball games. These are the ball games. And badminton and carom are indoor games. Am I right? Okay. So I need to fix up the people. I'll do one thing. I'll write down the name of the people. A, B, C, D. What are the information required is the games that is played by a man and food that he is going to have. यही है ना, दो information आपको चाहिए. ठीक है. First, A does not like South Indian food. साउथ इंडियन अगर ये पसंद करता तो ऐसा ही लिखता, नहीं करता तो उसके ऊपर बार डाल देंगे. इफ इट इज नॉट हैपनिंग आई विल पुट अ बार ऑन इट. इसका मतलब साउथ इंडियन नहीं है. एंड मुगलई भी पसंद नहीं है इसको. एंड प्ले बॉल गेम्स एक्सेप्ट टेबल टेनिस. टेबल टेनिस के अलावा बॉल गेम खेलता है तो फुटबॉल खेलेगा या सॉफ्ट बॉल खेलेगा. क्या मेरी बात समझ में आई? आगे चलते हैं. बी एंड डी डू नॉट प्ले बॉल गेम्स. ये दोनों बॉल गेम्स नहीं खेलते. तो ये क्या खेलते होंगे? इंडोर गेम्स. Should I say badminton and carom? So carom and badminton. ठीक है. And one of them like Italian food. तो I will write here Italian. इन दोनों में से कोई एक Italian पसंद करेगा. कौन मुझे नहीं पता, but I'll put arrow like this. C hates Mughlai food. भाई को मुगलई पसंद नहीं है. E likes Chinese food. E likes Chinese food. And plays softball. क्या आपको कुछ इसमें से निकाल सकते हो? अगर ये सॉफ्ट बॉल खेलेगा तो ये सॉफ्ट बॉल नहीं खेलेगा. क्या खेलेगा साहब? ये फुटबॉल. ठीक है, क्लियर है? ओके. अच्छा, कैरम आ गया, बैडमिंटन आ गया. इन दोनों में से कैरम एक, बैडमिंटन, फुटबॉल, सॉफ्टबॉल. ये क्या आएगा? टेबल टेनिस. इसको भाई को मुगलई पसंद नहीं है, इसको मुगलई पसंद नहीं है. मुगलई इन दोनों में से किसी को पसंद हो सकता है. बोलो हाँ ना. ठीक है ना. बी एंड डी डू नॉट. वन ऑफ देम इज लाइकिंग इटालियन फूड. इन दोनों में से एक को इटालियन फूड पसंद है. तो अगर इसको इटालियन पसंद है, ये मुगलई नहीं होगा तो कहना इससे दिस इज मुगलई. हाँ ना. और अगर ये मुगलई होगा तो ये क्या होगा? बोलो. बहुत बढ़िया. ये चाइनीज पसंद करता है, ये इटालियन सर. हाँ, ये साउथ इंडियन एंड मुगलई नहीं पसंद करता. आपके पास मुगलई एंड इटालियन चला गया, चाइनीज चला गया, क्या बचा? साउथ इंडियन चला गया. गुजराती. इट मस्ट बी गुजराती. डू यू एग्री विद इट? सो वेयर विल साउथ इंडियन कम्स? ठीक है. इज इट फाइन? नाउ व्हाट हैपेंस टू द पीपल इज दे फील कि यार मेरा तो कंफर्म नहीं हुआ, ये गलत है. नहीं. द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड नाउ इज यू आर नॉट गोइंग टू हैव द डेटा फिल्ड इन एवरी सेल. देयर विल बी फ्यू सेल्स वेयर देयर आर ऑप्शंस. इन दोनों में से कोई एक हो सकता है. तो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द प्ले टेबल टेनिस? कौन खेलता है भाई? एज फेवरेट फूड एंड गेम्स आर football and Gujarati and football. Who among them like Chinese food, Italian food? Cannot be determined. Why? Because it is either B or D. Who among the following likes carom? कैरम कौन खेलता है? हमें नहीं पता जी. बी डी में से कैरम खेलता है. मेरा आंसर होगा cannot be. Which of the following cannot be a possible combination? Chinese softball हो सकता है इनफैक्ट. ठीक है. बी इटालियन कैरम पॉसिबल है. बी कैन बी इटालियन एज वेल एज प्लेइंग कैरम. डी मुगलई एंड बैडमिंटन. डी मुगलई एंड बैडमिंटन क्वाइट पॉसिबल. कैरम एंड साउथ इंडियन. साउथ इंडियन इज टीटी. साउथ इंडियन फूड इज टीटी. कौन सा है?
ट्राई कीजिए। There's a circular table. How many people are there? पहला तो ये है कि भाई ऐसे करके ड्रॉ करना होता है और जल्दी करना, ठीक है। सी सिटिंग बिटवीन ए एंड एफ, बिटवीन बोला, लेफ्ट राइट नहीं बोला, तो ऐसे करके बनाओगे। ये कॉपी करना है, ऐसे ही सिंबल बनाना है और उसको एरो डालना, मुझे नहीं पता कौन लेफ्ट कौन राइट। बी सिटिंग टू प्लेसेस लेफ्ट ऑफ ई, स्ट्रेट लाइन में इमेजिन करो। बी सिटिंग टू प्लेसेस लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में देखो, तुम्हें भी नजर आ रहा हो, तुम्हारे हाथ के लेफ्ट, दिस इज वन लेफ्ट, बी इज टू पोजीशन लेफ्ट ऑफ ई। डी सिटिंग टू प्लेसेस राइट ऑफ एफ, डी इज सिटिंग टू प्लेसेस राइट ऑफ एफ। आपने कहा सर दो कंडीशन है, एसीएफ एंड एफसीए। सर एफसीए में एफ डैश डी तो नहीं आ सकता, तो ये तो चला गया, सिर्फ एसीएफ होगा, डैश एंड डी। तो बोलो भाई, एग्रीड? अब ठीक है ना। अब बी एंड ई के बीच में एक बंदा है, आपने कहा सर ये तो लगातार हो गए, तो यहां बी हो सकता है, यहां क्या हो सकता है, E, खत्म हो गया। अब इनको जैसे मर्जी बैठा लो, ए सी एफ बी डी, वो तो गोला जैसे मर्जी बना लो, इसको घुमा दो गोले को, ये लो, एफ यहां आ गया, मान लो ये एफ नीचे आ गया, उसके बाद बी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, सी आएगा। इज इट फाइन? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज लाइक अ सर्कल वी। बिटवीन विच टू पर्सन डी इज सिटिंग, डी किन के बीच में बैठा है? बी एंड ई। कौन सा ऑप्शन? हु इज सिटिंग डायमेट्रिकली अपोजिट टू ए? ए के डायमेट्रिक, ये सॉरी, दिस इज डायमेट्रिकली अपोजिट, ए के अपोजिट इज व्हाट? बी। हु इज एज नेबर टू हिज राइट? देख के बताओ। बहुत बढ़िया, गोले में बैठे हो, अंदर की तरफ देख रहे हो, सी, राइट, राइट हैंड साइड, तो सी। हु इज सिटिंग डायमेट्रिकली अपोजिट टू ई? बिटवीन विच टू पर्सन एफ इज सिटिंग? एफ किसके बीच में बैठा देखो जरा, सी एंड बी। अब ये कीजिए,
A, B, C, D, E, F are student of a class. Each one has topped in one of the 6 different subjects. Again, one has got a different overall rank. तो हमने कहा पहला what is constant is the name of the people. It can be A, B, C, D, E and F. उन्होंने कौन से सब्जेक्ट में टॉप किया है एंड रैंक क्या है. द हाईएस्ट रैंकर हैज टॉप्ड इन साइंस. इधर सुनिएगा, जिसका रैंक 1 है उसने साइंस में टॉप किया. कुछ लोग बोलेंगे एफ के आगे लिख दिया. एफ के आगे नहीं लिखा, उससे नीचे लिखा है. मैंने कहा कहीं पे भी साइंस आएगा उसके सामने 1 रैंक आएगा. मुझे नहीं पता कहां आएगा. दैट इज द रीजन व्हाई आई एम पुटिंग इट एट द बॉटम. ठीक है. डी हु इज हायर इन रैंक देन ई, तो ऐसे लिखो हायर, डी इज मोर देन ई बट लोअर देन ए. हैज टॉप्ड इन हिस्ट्री. किसने टॉप किया हिस्ट्री में? डी ने. ये समझ में? लेस देन ग्रेटर देन, ये मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किया था इसके ऊपर. द लोएस्ट रैंकर अमंग देम हैज टॉप्ड इन मैथ्स. तो जो मैथ्स होगा उसका लोएस्ट रैंक होगा 6. मुझे नहीं पता कहां है, मैंने ऐसे उठा के रख दिया. ए एंड ई हैज टॉप्ड नीदर इन साइंस नॉर इन ज्योग्राफी. तो ना तो साइंस में ना ही ज्योग्राफी में टॉप किया. ठीक है. एफ हैज टॉप्ड इन ज्योग्राफी. हाँ जी बोलो. सॉरी, ये साइंस एंड ज्योग्राफी. ठीक है, ज्योग्राफी में इसने टाइप टॉप किया. एफ इन ऑर्डर ऑफ रैंक इज लोअर देन ई. हु हैज टॉप्ड इन हिंदी. ई में ई ने किस पे हिंदी किस पे टॉप किया? इज हायर देन सी. ये सारे फिक्स होते हैं. ए डी ई एफ सी, सिर्फ बी नहीं आया. भाई टॉप रैंकर कौन है? क्या ए हो सकता है? तो इसका मतलब ए टॉप रैंकर नहीं है, मतलब बी टॉप रैंकर है. बोलो यार. ए का 2 रैंक, डी का 3, ई का 4, एफ का 5 और 6 किसका? क्या मैं मैथ्स यहां फिट करूं? 1 के आगे साइंस आएगा? हाँ ना. ठीक है. हिंदी आ गया, ज्योग्राफी आ गया, सब आ गया. एक सब्जेक्ट बचा है, कौन सा? इंग्लिश विल कम हियर. आई विल कैंसिल इट. ठीक है. सब आ गया, सब फिट हो गया. बहुत बढ़िया. कुछ पूछना है इसमें? कितने लोगों का ये बना था? बहुत बढ़िया, वेरी गुड. ठीक है, ट्राई करो, बनेगा. हु अमंग द फॉलोइंग हैज टॉप्ड इन साइंस? बी. अगला बताओ. हु अमंग देम हैज लोएस्ट रैंक? लोएस्ट रैंक इज ऑफ सी विच इज 6th. तो नन ऑफ दीज. अच्छा, कई बार ये होता है, हमें आदत पड़ी होती है, अरे सी नहीं है, क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? नन ऑफ दीज भी आंसर हो सकता है. कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी आंसर हो सकता है. इन विच सब्जेक्ट ए हैज टॉप्ड? इंग्लिश. विच रैंक डज एफ होल्ड अमंग द 6 स्टूडेंट? एफ का कौन सा रैंक है? एफ का इट इज 5th रैंक. इन विच सब्जेक्ट हैज ई टॉप्ड? ई ने किस में टॉप किया? लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन.
हो गया. P, Q, R, S, T, U went for a picnic. Out of which these two are singer. कितने सिंगर है? Two are, one is an actor and one is photographer. अच्छा, हर बार आप सेंटेंस पढ़ नहीं सकते तो आपको सिंबल मालूम होने चाहिए कैसे लिखना है. P is an actor लिखा हुआ है. मैरिड टू एस, ये बताया था मैंने. डबल एरो का मतलब होता है दे आर मैरिड कपल. सिंगल एरो मींस ब्रदर या सिस्टर. ऊपर वाला एरो मतलब फादर और मदर, एक जनरेशन ऊपर. ये हमने डिस्कस किया था. ठीक है. देन P, who is an actor, is married to S, who is a singer. The photographer is married to Q. Who is the same profession as U. S, Q और U का सेम प्रोफेशन है. अच्छा, सिंगर तो दो होते हैं, एक सिंगर एस चला गया तो क्यू यू तो सिंगर नहीं हो सकते. क्या होगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड. तो यू इज ऑल्सो अ डांसर. पी क्यू आर एस फॉर्म अ मैरिड कपल. पी क्यू एस, तो दिस मस्ट बी क्या? अभी क्या बता सकते हैं आर क्यू में से कौन मेल है, पी एस में से कौन मेल है या फीमेल है? नहीं. हिज, हिम जैसे वर्ड नहीं लिखे हुए तो नहीं बता सकते. ठीक है. यू इज ब्रदर ऑफ आर. यू जो भाई है किसका? ठीक है. यू इज ब्रदर ऑफ आर. तो कैन आई से यू आर इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ यू? नहीं. जिसकी सिस्टर है उसको समझ में आ जाएगा. सो इफ आई एम सेइंग एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, वाई कैन बी ब्रदर एज वेल एज क्या? सिस्टर. तो हमने कहा हमें नहीं पता यार कौन मेल कौन फीमेल. इतना हमें पता चल गया, यू इज अ डांसर एंड ही इज ब्रदर ऑफ आर. ठीक है. लेट्स कम टू द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ डांसर्स? यू एंड क्यू. डू यू एग्री विद इट? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ सिंगर्स? एस एंड टी. एक ही बचा है टी, उसके बारे में नहीं पता. तो एस एंड टी आर सिंगर्स. हाउ इज आर रिलेटेड टू यू? बहुत बढ़िया. इट कैन बी ब्रदर. कई बार ऐसे भी लिखा होता है ब्रदर और सिस्टर. ठीक है. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट्स अ कपल? पी एस क्यू आर. पी एस क्यू आर कोई है? सॉरी, पी एस क्यू आर. कौन सा वाला? क्यू आर. Which of the following pair represents a pair of husbands? Cannot be determined. How do we know? Let's come to the next one. ठीक है. कितनों का आंसर आ गया था? ये मैच कर गया था एक सेट में. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. ठीक है.
Squad of 6 players, PQRSTU is participating in a Commonwealth Games. Each player is participating in any one of the games among the tennis, TT, badminton, golf, swimming, and chess. All the players are put up in 3 hotels, Taj, Oberoi, and Lee Meridian. 2 of them are put up at Taj, 2 at Oberoi, and 2 are Lee Meridian. R does not stay at Oberoi. तो मैंने कहा यार पहला तो मैं PQRST फिक्स कर देता हूँ. ये फिक्स करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. PQ. अब ये क्या क्या करेंगे भाई. एक तो गेम खेलते हैं कुछ, दूसरा ये किसी होटल में ठहरते हैं. एम आई राइट. पहला, आर डज नॉट स्टे एट ओबरॉय. ओबरॉय में नहीं होगा. एंड प्ले बैडमिंटन. भाई साहब बैडमिंटन खेलते हैं. द प्लेयर्स पार्टिसिपेट इन स्विमिंग एंड टेबल टेनिस आर नॉट स्टेइंग एट ओबरॉय. तो स्विमिंग लिखने का तरीका एंड टीटी वाले ओबरॉयज में नहीं रहते. ठीक है. टी प्लेस चेस and S plays golf. U and S put up at Taj. U and S put up at. इसका मतलब ये ओबराई में नहीं है, ताज दोनों जा चुके हैं. क्या बचा? क्या बचा? ली मेरिडियन. एम आई राइट? ठीक है. टी पुट अप एट ओबराय. क्यू पुट अप एट ली मेरिडियन. हो गया. 2 ली मेरिडियन, 2 ताज. ये क्या हो गया? ओबरॉयज. ठीक है. स्विमिंग एंड टीटी वाले ओबराय में नहीं ठहरते. तो इसका मतलब स्विमिंग एंड टीटी वाले कहां ठहरेंगे? देखो, दिस कैन बी स्विमिंग और टीटी. दिस कैन बी टीटी और. डू यू एग्री विद दिस? आई कांट पुट स्विमिंग एंड टीटी हियर. सो देयर इज ओनली वन गेम व्हिच इज लेफ्ट. बहुत बढ़िया. I'm still not able to fix out for Q and U who is playing which game. Let's come to the question first. Who plays tennis? P. Answer is P. None of these. Which of the following combination of game and hotel is not correct? Tennis and Taj. Tennis and Taj is not correct. Do you agree with this? Tennis is with Oberoi. So tennis and Taj is not correct. In which of the following pair one player is staying at Taj and other is at Lee Meridian? पहला है QR. दोनों ली मेरिडियन में. SR. Yes. Taj and Lee Meridian, SR. Which game does Q play? Swimming or TT? क्या not determined लिखूं? क्या लिखूं? Which of the following pair of player is staying at Lee Meridian? Lee Meridian is Q and R. Yes, you are right. I believe it is clear. Let's take up this.
इससे पूरा नहीं आएगा ना, मैं छोड़ दूंगा क्वेश्चन मोबाइल लेके मेरा फोटो ले लेना, उसके बाद सॉल्व करना है, इससे थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपका आया होगा। हियर वी गो, टेक अ पिक्चर ऑफ इट। पहले इसका फोटो लो फर्स्ट, आगे चलें। नेक्स्ट 32, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लेना। 33, 34, 35, ठीक है, बस यही है। तो कोई इसको एक ग्रुप में भी डाल देना, सीयूटी वाले ग्रुप में डाल देना। ये 31, अब डाल देगा। Okay, here we go. From a batch of 6 boys, A, B, C, D, E, F are 6 boys and 4 girls, P, Q, R, S. A team of 6 is to be selected. The criteria is very simple. B and E, D have to be together. So B, D या तो इकट्ठा आएंगे या नहीं आएंगे. C cannot go with Q. C and Q cannot be together. P and R have to be together. देखो बार बार पढ़ना नहीं है, इसको सिंबल्स में लिखना है. F cannot go with A और F cannot go with D. ये पॉसिबल नहीं है. P S के साथ नहीं जाएगा. And A and E have to be together. क्या ये समझ में आया? ये कंडीशंस, ठीक है, इसको भी इधर लिख लेता है. I'll form the question. अब बच्चा क्या करता है, इसको बनाना चालू करता है. मेरा मानना है हमेशा आप आगे चलो और देखो कि क्वेश्चन क्या कहता है. 4 of the member including E have to be boys. 1 of the girls has to be R. ठीक है, 4 लड़के चाहिए, 4 boys. तो गर्ल्स कितनी चाहिए होंगी? 2 गर्ल्स. गर्ल्स में कौन है? R तो है, ठीक है. बॉयज के बारे में देखा कुछ? E है,
ई है तो कौन आएगा ई के साथ? ए आएगा। तो इसका मतलब एफ नहीं आएगा, ठीक है, यस नो। तो हमने कहा ए ही आ सकता है, बी डी आ सकता है, 4 लड़के हो गए पूरे। और अगर बी डी नहीं आ रहा तो बी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, एफ नहीं आएगा, 3 ये चले गए, 2 ये, 5, एक और बचा है, कौन सा वाला है? अरे यार, इफ बी डी इज नॉट कमिंग, एफ इज ऑल्सो नॉट कमिंग, 3 ऑफ देम आर नॉट कमिंग, तो कैन यू फॉर्म अ 4 बॉयज का सेट? आउट ऑफ 6 इफ 3 बॉयज आर नॉट कमिंग, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 3 बॉयज तो आएंगे, विच इज नॉट अ पॉसिबल। इसका मतलब बी डी शुड बी देयर। इज दैट फाइन? तो आपने कहा सर बिना बीडी के तो जीवन नहीं होगा, सर बीडी ही चाहिए हमें तो। चलो जी आगे आइए। पी आर हैज टू बी टुगेदर, तो यहां क्या होगा? और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। सो ए बी डी ई पी आर, ए बी डी ई पी आर, ए बी डी ई पी आर, सेकेंड इज द करेक्ट। कितने लोगों का आंसर सही? ठीक है, ठीक है, पूरा सेट नहीं बनाना, जरूरी नहीं है, यू कैन फॉर्म इट। मैं दोबारा बता रहा हूं, हर क्वेश्चन के लिए नया लॉ है, क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होगा सब कुछ। आपने देख लिया, और पहले वाले हमने क्वेश्चन थे चेंज हो रहे थे कि सी इज थर्ड, उससे ऊपर एच आता है, एस और एक्स कंसेक्यूटिव आता है, कांट आंसर इट। So every question is giving you some more information to fit in and then you get an answer. Let's come to the next one. If the first, in terms of alphabetical order from low to high, 3 members of the girls and C agrees to team up with Q and Q refuses to team up with A, CQ आएगा लेकिन QA नहीं आएगा। If the first, in terms of alphabetical from low to high, 3 members of girls and C agrees to team up with Q, क्यू ए के साथ नहीं आएगा, क्यू ए के साथ नहीं आएगा। कितने बॉयज चाहिए, कितनी गर्ल्स चाहिए? 3 बॉयज होंगे तो कितने होंगे? 3। इज दैट फाइन? ठीक है, तो आपको पता है पी आर तो आएगा ही आएगा, ठीक है, पी आर तो आएगा ही आएगा। और कौन? पी एस नहीं आ सकता, इसका मतलब क्या आएगा? क्यू आएगा। क्या आएगा? क्यू आएगा। क्यू इज रेडी टू टीम अप विद ए, तो क्यू ए आएगा। नॉट रेडी, अच्छा सॉरी, तो ए नहीं आएगा भाई, सॉरी, क्यू ए, हाँ नॉट रेडी। तो क्या ए नहीं आएगा तो ई भी नहीं आएगा बोलो, तो कहना इससे बी डी आएगा, सी आएगा। और कुछ हो सकता है? बी डी एंड एफ, क्यों? एफ डी के साथ नहीं आता, देखो। तो आपने कहा सर यही कॉम्बिनेशन हो सकता है, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो बी सी डी पी क्यू आर, बी सी डी पी क्यू आर, कौन सा? कितनों का आंसर था फर्स्ट? ठीक है। इफ नॉट मोर देन 1 मेंबर हैज टू बी गर्ल, एक से ज्यादा लड़की नहीं हो सकती, देन द टीम कंसिस्ट ऑफ क्या? हमने कहा एक से ज्यादा लड़की नहीं हो सकती। अच्छा, ये जो आपने अभी कैंसिल किया था इसे कैंसिल कर देना, ये दैट वाज ओनली फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन। सो अगर एक लड़की होगी तो कितने बॉयज होंगे बताओ? बॉयज में देखो 5 लड़के कभी भी नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? एफ ए के साथ नहीं आता है, एफ डी के साथ नहीं आता। तो अगर एफ आया 2 चले गए। तो हमने कहा यार एक काम करो, ए बी सी डी ई ले लो। हाँ यार, ए इकट्ठा आता है, बी डी इकट्ठा आता है, ठीक है। तो सी के साथ क्यों नहीं आता? तो क्यों नहीं आएगी भाई लड़की। पी आर भी नहीं आएंगे, तो आते दोनों इकट्ठा आते हैं, तो क्या आएगा? तो कहना इसे इट इज बी सी डी ए एस, ठीक है, एफ को छोड़ के और उधर से एस। कौन सा आंसर? किसी का था ये आंसर? If 3 members including C have to be boys, 3 are boys, S agrees to team up with P while E refuses to do so. S P के साथ आएगा लेकिन E नहीं आएगा, S P के साथ आएगा लेकिन E के साथ नहीं आएगा। कितने बॉयज? गर्ल्स कितनी? हाँ जी बोलो। एस एग्रीज टू टीम अप विद पी, पी एस आएगा, ठीक है, वाइल ई रिफ्यूजेस टू डू सो, तो ई एस के साथ नहीं है। अच्छा, हाँ सॉरी, ई पी के साथ नहीं आएगा, यू आर राइट, ई पी के साथ नहीं आएगा।
एस पी के साथ आने के लिए तैयार है लेकिन ई तैयार नहीं है, मतलब पी के साथ आने के लिए तैयार है। ठीक है, ओके। Who is going to come here? C. If C is coming there, who is not going to come? Q. तो कौन आएगा? P E के साथ नहीं आएगा तो E नहीं आएगा। तो दो बॉयज कैन बी बी डी, बोलो यार। यस, P S कैन कम टुगेदर। ओके, C P A नहीं आएगा तो कौन नहीं आएगा? E नहीं आएगा। तो दो लोग चले गए, एक F बचा है। F कैन नॉट कम विथ किसके साथ? तो ठीक है, चला गया। तो इट इज बी सी डी एंड पी आर एस। बी सी डी एंड पी आर एस। ये दोनों तो लिखा हुआ था, ई तो आई नहीं रहा, सी इज देयर। तो कौन कौन से लोग बचे? बी डी आर, कोई है? बी डी आर फर्स्ट वाला, ठीक है, क्योंकि बाकी तो दिए हुए थे। ओके, इफ 4 गर्ल्स हैव टू बी टुगेदर इन द टीम, देन द कंपोजिशन ऑफ द टीम इज। 4 लड़कियां आ रही है, अब इसे कैंसिल कर दो। 4 girls are coming there. Is it ever possible that the 4 girls come together without any modification? कुछ लिखा नहीं है। Why you already know PS cannot come together? Am I right? So 4 girls cannot come together because PS is not there and it is not mentioned that you ruled out it. तो इसका मतलब क्या होगा? Team is not possible. Is it fine? Clear? कोई डाउट किसी को? कुछ पूछना चाहे आप? No. बहुत बढ़िया। Let's take up some question. एक मिनट रुकिएगा जरा। Here we go. So I'm repeating it. It is logical connectives. The first one. Let me do 2-3 questions. After that, you will be able to understand. A walks less fast than B. तो हम less fast than B. So can I say A is less than B? B walks as fast but not faster than C. मतलब B is equal to C. B C के बराबर है लेकिन उससे ज्यादा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? और मैं कहता बराबर भी है, हो सकता है, और ज्यादा भी हो सकता है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। देखो 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये सही है। 7 या तो 5 के बराबर है, उससे ज्यादा है। आपने कहा ज्यादा है, सही। आई विल से 7 इज इक्वल टू 5 इज रॉन्ग। आई विल से 7 इज ग्रेटर देन 5, यू विल से राइट। क्या आपको बात समझ में आई? तो ग्रेटर देन साइन मतलब बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल टू या तो बड़ा है या इक्वल है। क्या मेरी बात समझ में आई? नहीं आया? शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? आ गया, ठीक है। Here we go. Then as compared to A के मुकाबले C walks क्या? खत्म, faster than A. Do you agree with this? कुछ मुश्किल तो नहीं है? हलवा है। आ जाओ फिर हलवे में। Shinu attends the event, then Raj, Harsh and Vineet will also attend the event. ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूं, मैम नाम क्या आपका? दिव्यांश। आपका? अरे एंड दक्ष। दक्ष ना? ओके, लिसन टू माय स्टेटमेंट। Whenever Jay comes to take the class, Divyanshi, Aryan and Daksh are present in the class. Am I right? Whenever Jay comes to take the class, these 3 students are present. If Jay is not coming to take the class, can I say Divyanshi is absent? क्यों? मैं आ रहा हूं तो ये तीनों प्रेजेंट होते हैं, आज दिव्यांशी नहीं है। इसका मतलब क्या कहेंगे? जय नहीं है। If Jay is not in the class, Divyanshi may be or may not be, इंग्लिश की क्लास भी तो अटेंड करती होंगी ये, तो आई एम नॉट श्योर। सही बोला। तो दिव्यांशी मे बी प्रेजेंट, मे नॉट बी प्रेजेंट। दोबारा बता रहा हूं, जब भी जय पढ़ाने आता है ये तीनों प्रेजेंट होते हैं। आज जय नहीं आया, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। क्या मेरी बात समझ में? ठीक है। इफ आर्यन इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, कैन आई से जय इज नॉट टीचिंग? सोच लो। जब भी जय क्लास में होता है ये तीनों प्रेजेंट होते हैं। आज क्लास में आर्यन नहीं आया, बाहर पूछा, आपने कहा आर्यन आया, उसने कहा आर्यन नहीं आया, तो पक्की बात है जय नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि जब भी जय पढ़ाता है ये प्रेजेंट होते हैं। तो आज ये प्रेजेंट नहीं है तो जय नहीं पढ़ा रहा। कोई भी पढ़ा सकता है लेकिन जय
तो नहीं पढ़ा रहा। क्या आपको ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आई वॉन्ट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। If Shinu attends the event, then Raj, Harsh, and Vineet will also attend. अगर शीनू आएगा तो राज भी आएगा, हर्ष भी आएगा और विनीत भी आएगा। एरो का मतलब इसके बाद ही आएंगे। Assuming that the above statement is true, then which of the following must also be true? If Shinu does not come, आज शीनू नहीं आया, तो राज does not come। क्या ये सही है गलत है? मे बी और बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो दिस इज नॉट द आंसर। इफ राज, हर्ष एंड विनीत अटेंड द इवेंट, राज, हर्ष और विनीत आए तो इसका मतलब क्या शीनू आए? मे और मे नॉट। सुरती मैम की क्लास है, तुम आ भी सकते हो और नहीं भी आ सकते हैं। हमने कहा नहीं भाई, जरूरी नहीं। मैं आऊंगा तो तुम तीनों प्रेजेंट हो गए, तुम तीनों प्रेजेंट हो गए तो जरूरी नहीं है मैं आऊंगा, लेकिन मैं क्लास में खड़ा हूं तो दीज थ्री आर प्रेजेंट। डू यू एग्री विद दिस? ठीक है, तो आपने कहा ये भी चला गया। इफ हर्ष डज नॉट अटेंड द इवेंट, अगर दक्ष नहीं आया तो आर्यन भी नहीं आएगा। क्या ऐसा है कुछ? नहीं यार, इनके बीच में तो कोई कोरिलेशन नहीं। इफ राज डज नॉट अटेंड द इवेंट, अगर आज दक्ष क्लास में नहीं है तो जय भी क्लास में नहीं होगा, क्योंकि जब भी जय क्लास में होता तो तीनों प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड इट? चमत्कार हो गया। यूजुअली मैं जिसको पढ़ाता हूं उनको पहली बार में ये समझ में नहीं आता, 4-5 एग्जाम्पल लेने होते। क्लियर है ना? ठीक है, लेट्स कम टू वन मोर। इधर देखिएगा, D is more intelligent than A, तो D is greater than A। If and only if कब होते हैं? When E is less intelligent than B। जब भी E less होगा intelligent than B, then D is more intelligent than A। If and only if मतलब तभी, तो जब भी E B से कम है तो क्या होगा? D A से ज्यादा होगा। ठीक है। If D is more than C and E but not more than B, B से कम नहीं है, ठीक है, देन द मैक्सिमम हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन बी लेस इंटेलिजेंट देन ई। ई से कम मैक्सिमम कितने बच्चे होंगे? वुड यू लाइक टू ट्राई और शुड आई? ठीक है, करो एक बार। बहुत अच्छा, वेरी गुड। Okay, let's come to this one. Here we go. If E is less than B, of course, ये दिया हुआ है, E D से छोटा है, D B से छोटा है, तो जो E होगा वो क्या होगा? B से छोटा होगा। तो इसका मतलब D किससे ज्यादा है? A से ज्यादा है, C से ज्यादा है, E से ज्यादा है। क्या आई कैन कंबाइन इट देम लाइक दिस? ऐसे कंबाइन करके लिख सकता हूं। ठीक है, मैंने कहा मैं आपसे बड़ा, आपसे बड़ा, आपसे बड़ा। ठीक है, अब मैं तुम तीनों से बड़ा हूं, तो आर्यन से छोटे मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? खत्म। 2। मे बी बोथ ए एंड सी आर लेसर देन दैट, क्योंकि मैक्सिमम पूछा और मिनिमम पूछा होता था 0। बहुत बढ़िया। क्या ये क्लियर है? ठीक है ना? ये ठीक है ना? क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, वेरी गुड। तो माय आंसर विल कम आउट टू बी क्या? कितने लोगों का आंसर था? 2। वेरी गुड।
Amit has to select 4 team members out of 6. या तो ए आएगा या बी आएगा, दोनों नहीं आएंगे, या तो ई आएगा या एफ आएगा, तो दोनों नहीं आएंगे। आउट ऑफ 6 आपको पता है इन दो में से एक, इन दो में से, इसका मतलब सी डी तो आएगा ही आएगा। डू यू एग्री विद इट? देयर आर 4 people टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 6, मतलब 2 of them आर रिजेक्टेड। तो ए और बी में से एक रिजेक्ट होगा, ई और एफ में से एक रिजेक्ट होगा। डू यू एग्री? So who will certainly come? C and D. If C selects, if he selects C, then E must be selected. तो E F में से जो हमने ऑप्शन दिया था, F तो आएगा नहीं, सिर्फ E आएगा, ठीक है। If he selects D, then either E और F comes. आपने कहा सर कोई ऑप्शन नहीं है, E F वाला तो चला गया क्योंकि C तो सिर्फ E के साथ आता है। अच्छा, A B का क्या कॉम्बिनेशन होता है? तो इट कैन बी इधर A और B। तो हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस कैन कम देयर? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट आंसर टू? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ गया ना? इधर साहब क्लियर है? इधर अच्छा, ये समझ में आ गया? बिकॉज इट इज सेइंग इफ सी कम्स इट मस्ट कम विद ई, इफ डी कम्स इट कैन कम विद ई एंड एफ। तो यार एफ को लेने का तो सवाल ही नहीं उठता, आई विल बी टेकिंग सर्टेनली ई, ठीक है। सो दैट इज वन। ए बी में से एनी वन ऑफ देम कैन कम, दैट्स व्हाई इट इज अ टू कॉम्बिनेशन।
ओके, तो फर्स्ट दे आर टू अरेंजमेंट, एक हाइट के हिसाब से करते हैं और एक एज के हिसाब से. P, I'll write PRSTU. Five people, no two people are of same height or same age. ठीक है. Rahul, who is older than Umrao. Rahul is older than Umrao, is not as tall as Sumit. राहुल सुमित के बराबर नहीं है. Is not as tall as Sumit. तो सुमित क्या है? राहुल सुमित जितना टॉल नहीं है. राहुल हु इज ओल्डर देन उमराव. कॉमा लगाने का मतलब अब दोबारा कॉमा है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द राहुल. राहुल इज नॉट एज टॉल एट सुमित. राहुल सुमित के बराबर टॉल नहीं है. बराबर हो सकता है लेकिन उसने लिखा है नो टू ऑफ देम आर ऑफ सेम हाइट और एज. तो हाइट के हिसाब से सुमित इज मोर देन आर. इज इट फाइन माय डियर? ठीक है. पारुल हु इज यंगर देन उमराव. एज के हिसाब से पारुल इज लेसर देन. ठीक है. इज टॉलर देन राहुल. पारुल इज टॉलर देन राहुल. Tina, who is older than Umrao. Tina is older than Umrao, is shortest in the group. So T is shortest. Shortest मतलब height के हिसाब से. Sumit, who is younger than Parul. Sumit, who is younger than Parul, is taller than both. Sumit is taller than both Tina and Umrao. हो गई. वैसे भी T is the smallest one. ठीक है. The oldest person is not the shortest. तो oldest is not shortest. इसका मतलब T कैन नॉट बी ओल्डेस्ट. तो बोलो भाई शॉर्टेस्ट इज. अच्छा जरा कंबाइन करो. S P R एंड S इज मोर देन बोथ. अच्छा R से कम तो T होगा बिकॉज दैट इज U एंड T. एम आई राइट? ये दे रखा है S एंड P. ठीक है. दे आर ग्रेटर देन R एंड T. S is greater than U and T. T is the shortest one. S is greater than, oldest is not the shortest one. ठीक है. तो shortest is T. You are already aware. अब इसको बनाओ जरा. सबसे आगे R ही आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि T cannot be the oldest one. फिर कौन आएगा? T. फिर कौन आएगा? फिर कौन आएगा? फिर कौन आएगा? All five of them are arranged. But are you able to arrange all five here? No, not here. Am I right? पक्का? Yes, no? ठीक है. Rahul is the oldest one. Is Rahul the oldest one? Yes. Sumit is the tallest one. क्या सुमित टॉलेस्ट है हाइट के हिसाब से? नहीं भाई. S और P के बारे में पता नहीं है इन दोनों के बारे में कौन बड़ा है. तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. राहुल इज टॉलर देन पारुल. राहुल क्या पारुल से? नहीं भाई ये तो उल्टा है. पारुल इज टॉलर देन राहुल. ये भी गए. सुमित इज ओल्डर देन उमराव. नहीं जी. उमराव इज ओल्डर देन एज के हिसाब से. तो आप कहेंगे ये भी नहीं होगा. तो आंसर क्या है? राहुल इज द ओल्डेस्ट वन. ही इज द ओल्डेस्ट. ठीक है. कितनों का आंसर था ये? बहुत बढ़िया. वेरी गुड. नाउ देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज अ सेट थियरी. थोड़ा थोड़ा आपको देता हूं. मान लेते हैं, अभी लिखना नहीं है इधर देखो. These are the people who passed in physics. These are the people who passed in chemistry. If I say 30 people passed in physics, मतलब ये गोले के अंदर 30 लोग हैं. क्या मेरी बात समझ में आई? This is set. ठीक है. C is set of the people who passed in chemistry. I say that is 40. If I say there are 15 people who passed in both physics and chemistry, intersection का मतलब होता है दोनों में, तो I'll write 15 here. Can anyone tell me how many people passed only in physics? ये टोटल गोला 30 है, ये 15 है, तो ये क्या बचेगा? How many people passed only in chemistry? बहुत बढ़िया. Are you aware about this? Now you can try this. I explain it again? So there are 30 people who passed in physics, but there are 15 people who also passed in chemistry. Means this portion is coming in both physics and chemistry. This is a common part.
There are 40 people who passed in chemistry, 15 of them also passed in physics. तो 40 में से 15 घटाया तो सर 25 people are there who are not passed in physics but they are passed in chemistry. क्या ये क्लियर है? उसी टाइप में हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा. There are 50 students, 30 like coffee. कॉफी पसंद करने वाले 30 लोग हैं. कुछ लोग चाय भी पसंद करते हैं. टी पसंद करने वाले 35 लोग हैं. 25 दोनों पसंद करते हैं. तो बताइए कितने टी पसंद करेंगे सिर्फ? यार ये टोटल सर्कल जो है 35 है, इसमें से 25 को कॉफी भी पसंद है. तो कैन आई से 10 लाइक ओनली टी? अच्छा 30 पीपल लाइक कॉफी, 25 ऑफ देम आर आल्सो लाइकिंग टी. तो कैन आई से इट इज 5 पीपल हु आर लाइकिंग इट. व्हाई देयर इज अ फ्लक्चुएशन? में ये सर्कल बनाया आपने. 5 in coffee and 25 in coffee and tea and 10 are only in tea. So find the number of students who like either tea or coffee. तो टी एंड कॉफी का मतलब इन सारे वैल्यू को ऐड कर देते हैं. कैन आई से दैट? वी कैन ऐड अ कॉलम. तो टोटल कितने हो गए? इधर और का मतलब होता कि एटलीस्ट वन. तो इफ आई से द पीपल हु लाइक टी और कॉफी, इसका मतलब पीपल हु लाइक एटलीस्ट वन ऑफ देम, मतलब या तो टी पसंद करता होगा सिर्फ, या कॉफी, या दोनों. सो ऑल दैट कॉम्बिनेशन विल कम आउट टू बी योर आंसर. दैट कम्स आउट टू बी 40. इज इट क्लियर? ठीक है, आपको समझ में आया सर? तो आंसर क्या आ गया? टी और कॉफी इज 40. कैन यू टेल मी हाउ मेनी पीपल आर देयर हु आर लाइकिंग नीदर ऑफ देम? ऐसे कितने लोग हैं दोनों में से किसी को पसंद नहीं करते? How many people are there total? 50. 40 of them are liking either tea or coffee. 40 ऐसे लोग हैं जो कम से कम एक तो पीते ही हैं उनमें से. तो कितने लोग हैं who are not going to have any one of them? Very good. Answer will be done in that case. Is it fine? Clear? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा. हाउस और अ फ्लैट. बट फ्लैट यमुना एक्सप्रेस वे में उसके लिए गाड़ी जरूर चाहिए. तो क्या लिखा हुआ है? इफ राम बाय अ फ्लैट ही विल बाय अ कार. विदाउट दैट यू कांट सर्वाइव. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस? राम बॉट अ हाउस सो ही विल नॉट बाय अ कार. क्यों भाई? पीठ बिहार में लिया है तो भैया गाड़ी तो आ ही जाएगी. ठीक है ना? तो आई विल से नो, नॉट दिस. राम बॉट अ कार सो ही विल नॉट बाय अ फ्लैट. उसने गाड़ी खरीदी है तो फ्लैट नहीं खरीदी. वो फ्लैट खरीद भी सकता है, या फ्लैट के साथ कार जरूर है, लेकिन अगर किसी का गाड़ी है तो भैया फ्लैट वाला भी हो सकता है और घर वाला. ठीक है ना? तो हमने कहा नो. राम डिड नॉट बाय अ कार सो ही मस्ट नॉट हैव बॉट अ फ्लैट. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर वो फ्लैट खरीदता है तो गाड़ी जरूर खरीदता है. उसने गाड़ी नहीं खरीदी और दोनों में से एक खरीदना जरूरी है, तो क्या खरीदा होगा? हाउस.
So he did not buy a flat because for a flat he must buy a car as well. So third will be correct. Is it fine? Clear? ए आएगा तो एफ भी आएगा, मतलब ए एफ विल कम टुगेदर। कितने लोग सिलेक्ट करने आउट ऑफ? ठीक है, ये चीज इसलिए बोलता हूँ क्योंकि दिमाग में फिर वो रिटेन रहता है। 4 लोग सिलेक्ट करने आउट ऑफ 7। इफ ए इज चोजन फॉर द वर्कशॉप देन एफ हैज टू बी इंक्लूडेड। इफ जी इज चोजन देन ए एंड ई मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड। तो जी ए नहीं होगा और जी ई भी नहीं होगा। ठीक है, इफ सी इज चोजन ई हैज टू बी इंक्लूडेड। बी एंड डी मस्ट बी इन द सेम कैटेगरी, ईदर चोजन और नॉट। ठीक है ना, मतलब वही बी डी विल कम टुगेदर, नहीं तो नहीं आएगा। ओके, क्या ई अकेला आ सकता है? मैं पढ़ाऊंगा तो आर्यन आएगा, मैं नहीं पढ़ा रहा तो आर्यन। इफ सी चूजन ई हैज टू बी चूजन, मतलब अगर सी आएगा तो सी आएगा, ई अकेला आ सकता है। दोबारा सुनो, इफ जी इज चूजन देन ए एंड ई विल नॉट बी इंक्लूड। अगर जी आएगा तो इनमें से ना तो जी ए आएगा ना ही ई आएगा। अगर जी आएगा तो ए ई इकट्ठा आ सकते हैं। ठीक है, इफ ए इज टू बी चूजन देन इट मस्ट बी क्या, एफ मस्ट बी इंक्लूडेड। कैन एफ कम अलोन? ए आएगा तो एफ आएगा, ए नहीं आ रहा तो? बहुत बढ़िया, यही सीखना है। अगर ए आएगा तो एफ आएगा, अगर ए नहीं आ रहा तो एफ की मर्जी है वो आए या। बहुत बढ़िया। ऑन द बेसिस ऑफ दीज कंडीशन इन हाउ मेनी वेज मैनेजर कैन बी चूजन? कितने तरीके से मैनेजर चूज किए जा सकते हैं? वेज। ठीक है, सो फर्स्ट इज लेट्स से ए इज कमिंग देयर, देन एफ इज ऑल्सो कमिंग देयर। ठीक है, हु मोर? ठीक है, सी ई। ठीक है, वन केस फर्स्ट, फिर ए एफ अभी भी ले लो, एक मिनट रुको। कैन आई टेक बी डी एज वेल? आपने कहा हाँ सर। ठीक है, 4 लोग चाहिए थे। जी ले सकता हूँ ए एफ के साथ, ई ले सकता हूँ, वो तो ले ही चुके थे। ई के साथ नहीं, रुको एक मिनट जरा। कैन आई टेक एफ? आ चुका है। कैन आई टेक बी सी? नहीं, तो यही दो होंगे कॉम्बिनेशन। ए एफ के साथ देयर आर 2 कॉम्बिनेशन। बोलो भाई। अच्छा एक बार बताओ, कैन इट बी लाइक दिस? ई एफ बी डी, ए नहीं आ रहा, एफ आ भी सकता है, और हमने सी को नहीं लिया, हमने ई को ले लिया। कैन इट बी ऑल्सो सी ई बी डी? सोच लीजिए। कैन इट बी जे ई के साथ ए ई नहीं आएगा, तो मतलब सी भी नहीं आएगा। शुड आई से बी डी एंड एफ? यस नो? जी के साथ और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो दीज आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन दैट यू कैन हैव। ठीक है, कितने ऑप्शन हो गए? 5 ऑफ देम। ठीक है, कोई और कॉम्बिनेशन किसी को लग रहा है? बोलो। एफ कैन कम अलोन, जरूरी नहीं है ए आएगा। ठीक है, सी के साथ ई आता है, एफ ई आ सकता है, तो लोग कई बार इसको भूल जाते हैं और सब लिख लेते हैं, इसको भूल जाते हैं। इज इट फाइन, क्लियर नाउ? ठीक है,
हाँ बोलो बोलो। GBD और कौन? बोलो बोलो सवाश। GBD E. G and E cannot come together. ठीक है, इसलिए नहीं। हाँ बोलिए ना। GBDF ये लिख लिया था शायद मैंने। हाँ ये होगा। ठीक है, पक्का? कुछ पूछना है? मतलब ऐसा पॉसिबल हो सकता है दैट आई मिस समथिंग, यू कैन आस्क मी, आई विल क्रॉस चेक दैट। क्रिकेट मैच में आप कितने रन मार सकते हैं? मिनिमम 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। Can anyone tell me how a batsman can score 5 runs without having a no ball and a white ball? Is it possible that you score 5 runs without having a no ball or a white ball? Yes, कैसे? सिंगल में 4 से ज्यादा नहीं दौड़ सकते, ऐसे थोड़ी ना दौड़ते ही रहेंगे। नहीं, एक बॉल में 5 रन मारने हैं। ओवर थ्रो भी नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है। ओवर थ्रो में भी कैसे हो सकता है? मतलब आपने 1 रन भागा और मैंने उठा के तुम्हारे साथ मिल गया। अच्छा ठीक है, मतलब बहुत बढ़िया। तो देयर इज ओनली वन वे वेयर ऑन अ वन बॉल विदाउट एनी एक्स्ट्राज यू कैन स्कोर डायरेक्ट 5। जो विकेट कीपर होता है उसका जो हेलमेट होता है वो पीछे लग रखा होता है उसने हमेशा। कैसे होता है ना, पेस बॉलर आ रहा है तो हेलमेट लगा लेता है, स्पिनर होता है तो हेलमेट नहीं लगाता। उस हेलमेट पे अगर डायरेक्टली बॉल लग जाए तो 5 रन मिलते हैं, इसलिए उसे बड़ा छुपा के पीछे बिल्कुल अपने बिल्कुल पीछे रखता है उसको। समझ आया? ठीक है, तो भैया ये क्वेश्चन है, अब इसमें करो आंसर, क्रिकेट मैच से रिलेटेड है, आपको ज्ञान नहीं है। क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है? 6 बॉल्स में, ठीक है, रोहित स्कोर 16 रन ऑन 6 बॉल विद अ डिफरेंट स्कोर ऑन ईच बॉल। हमने कहा 1 मारा, 2 मारा, 3 मारा, 4, 5, 6। व्हाट इज 6 + 1? 6 + 1 2 + 5 3 + 4 7 3 सा। लेकिन रन कितने मारे? मतलब 5 रन फालतू मारे, इसको 5 को कैंसिल करके क्या लिखूंगा? 5 रन नहीं मारे, क्योंकि इनका सम आ रहा है 21, आपको चाहिए 16, तो कितने नंबर रहे हैं? आई हैव टेकन ऑल रन्स फ्रॉम 1 to 6। 16 चाहिए, क्या काटूं उसमें से सो दैट इट विल बी 16? 5। इसका मतलब द रन्स आई मस्ट हैव स्कोर्ड इज 0 1 2 3 4 6। इज इट फाइन नाउ? यस नो? मैं तो मान के चल रहा था सबने एक एक रन मारा है, 1 2 3 4 5 6, दीज आर 6 रन्स, 6 distinct numbers on 6 balls, but then I get to know the sum of that is 21, which is 5 more than the runs given there. तो 5 को कैंसिल करके क्या लिख दूंगा? 0। So I'll say I must have scored 0 1 2 3 4 6. Now the balls. Ball number 1 2 3 4 5 6. The maximum runs were scored on third ball.
तो मतलब 6 रन यहाँ आएंगे। द मिनिमम रन्स वर स्कोर्ड ऑन फर्स्ट बॉल कितना, 0 रन। 4 रन्स वर स्कोर्ड ऑन थर्ड बॉल आफ्टर द वन ऑन विच 2 रन्स स्कोर्ड, जिसपे 2 रन मारे हैं उसके थर्ड बॉल पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड बॉल पे 4 रन मारे। तो 2 रन इधर हो सकता है, 1 2 3, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2 यहां नहीं मार सकता, 1 2 ये तो क्रॉस कर गया, तो वी मस्ट हैव स्कोर 2 रन हियर, 2 छोड़ दो उसके बाद 4 रन विल कम हियर। हाँ जी बोलो, क्या क्या? नहीं नहीं, पूरा सेंटेंस पढ़ भाई, आधे पढ़ के कहानी मत सुनाओ। 4 रन वर स्कोर्ड ऑन थर्ड बॉल आफ्टर द वन ऑन विच 2 रन वर स्कोर्ड। सर फुल स्टॉप लास्ट यहां पर आया, तो अगर आप ये पढ़ रहे हैं 4 रन वर स्कोर्ड ऑन थर्ड बॉल, वो गलत हो गया, क्योंकि थर्ड बॉल पे तो 6 रन दिए हुए थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेंटेंस विल बी कंप्लीटेड वंस देयर विल बी फुल स्टॉप। सो मोस्ट ऑफ द पीपल डू दिस मिस्टेक, मतलब ये कॉमन है, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें कराई है, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल डू इट। तो 4 रन वर स्कोर्ड ऑन थर्ड बॉल, यहां रुकना नहीं है, आफ्टर द वन ऑन विच 2 रन वर स्कोर्ड, जिस बॉल पे 2 रन मारे उसके तीसरी बॉल पे 4 रन मारे, तो आपने कहा सर 2 रन यहां होगा तो उसके थर्ड बॉल पे 4 रन इधर आएगा। क्या आपको समझ में आया सर? बहुत बढ़िया। इट इज ऑल्सो नोन दैट बॉल ऑन विच 1 रन वॉज स्कोर्ड नीदर द फर्स्ट नॉट द लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट बॉल पे 1 रन नहीं मारा, तो 1 रन यहां मारा होगा, तो 1 2 यहां क्या होगा, 3 रन। तो हाउ मेनी रन्स वर स्कोर्ड ऑन द लास्ट बॉल? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट 3? Very good. So if you read the statement clearly, then you will get this answer. Otherwise, it will become confusing. कि 6 रन भी आ रहा है, 4 रन भी आ रहा है, तब तक फुल स्टॉप ना हो, रुको मत। ठीक है, हो गया। चलो एक दो क्वेश्चन और थे, we'll continue with this in the next class as well. चलो with this, thank you so much. Thank you Rishika.